Hello everyone, myself Amit Kumar Sinha, Assistant Professor in Electrical Engineering Department. So today we are having a topic of signal flow graph. In control system, there are two methods for controlling, means for achieving a transfer function. For block diagram reduction, in the previous slides or previous classes we will discuss about this, about means transfer function, how to calculate transfer function using block diagram reduction. So now we are having this signal flow graph. So signal flow graph is some different from your previous block diagram reduction. It is a graphical representation. The previous one is your pictorial representation. Now it is a graphical representation which will a relationship between a linear algebraic expression. So ये जो आपके पास एक graphical representation में आपको देखने को मिलता है between input and output के बीच का relationship में. So it is converts a network nodes are directly connected or directly having some branches are there, and with these branches or you will get converted into some graphical representations. So it dissipates the flow of signal from one point to a system and gives the relationship among the signal. So input और output के बीच का जो relationship होता है ये हमको various signals के थ्रू हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, graphical representation के थ्रू देखने को मिलता है. इसमें ब्लॉक्स नहीं होते हैं, इसमें कुछ नोड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं. उन सभी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो एक सिंपल इक्वेशन आपके पास हम लोग लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स. तो यहाँ पे आपके y इक्वल टू ए एक्स अगर आप देखेंगे तो y आपका आउटपुट सिग्नल है. तो y इक्वल टू अगर आउटपुट लेते हो तो दिस वन इज योर आउटपुट सिग्नल. ओके, a इज योर सम कांस्टेंट इज देयर एंड योर x इज योर इनपुट. सो दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू ए एक्स आपके पास अगर आउटपुट सिग्नल है तो इस y को हम आउटपुट से थ्रू डिनोट कर सकते हैं, इस x को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं एज ए इनपुट के थ्रू, एंड दिस a जो आपके पास है ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आपको शो ऑफ कर रहा है. सो एवरी वैल्यू वेरिएबल इन सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइन बाय सम नोड्स. सो दिस पॉइंट्स, दिस x पॉइंट, दिस y पॉइंट्स इज आर योर नोड्स. सो ये इनपुट नोड कहलाता है जहाँ से आपका सोर्स स्टार्ट होता है, जो डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा इनपुट नोड के फॉर्मेशन में होता है, और ये आपका आपका जो आउटपुट यानी डेस्टिनेशन जो होता है ये आपको आउटपुट नोड के तरफ से माना जाता है. तो दिस वन इज योर इनपुट नोड, दिस वन इज योर आउटपुट नोड, और इनके बीच में कुछ ब्रांचेज होते हैं. इसमें तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में स्लाइड्स में देखेंगे तो वहाँ पे एक जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है इसके पास से कुछ ना कुछ ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. सो दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड मीन्स डिजाइंड टू हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शन. नेक्स्ट, दीज ब्रांचेज आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. Unidirectional in the sense that they are different from one direction, means they are having a bidirectional, they can change in any particular direction. So this arrow is there which indicates that in which direction it is going. So we are moving to our terminologies. So here we are discussing about input node and output node. So input node is that in which the source contains only the outgoing branches. That means the only outgoing branches, means x1 is there, x2 is here, x3, x4, all the branches are there. So these are the means outgoing branches. So no incoming branches is there. If you see that in x1 में अगर हम देखेंगे तो कोई भी इसमें कोई बाहर से कोई नोड आप इसमें नहीं आ रहा है. So जब कभी भी ऐसा देखने को मिलता है when there is an input node or source in which the no outgoing branches is there, so that is x1 is your input node. Next, similar to the input node, output node is that in which all the contains the incoming branches. So incoming branches means x4, all the branches are incoming, no outgoing is there. So in this way, this x4 is your means outgoing branches. Path is a continuous flow. So here we can see that two path is there. One is from input, that is from input side to the output side, and next one is from your output to input side. So when the path is from input to output, that means here you can see it again from the arrow direction, A21, A32, A43, A42, all this direction are from input to the output side. So whenever this one is there, we will call this as a forward path. In this path, the x1 to x2 and x3 to x4, all the path are from input direction to the output direction. Next, a feedback path is there. Feedback path in this from output to input means the direction is from output side to the input side. In this way, we call this called as this term as a feedback path. So in this feedback path, so we will get some feedback, that is from output path to the input path. We will get some momentum or some means information. So this called as means feedback path. Self loop.
Here in this we will see that a self loop is there. From this point you can see that it consists of a single branch. No other branches are there. Means it originates from this point, from this x3 point, and it eliminates there itself. So this branch is called is the self loop. Means no other, means it don't passes from one branches to another branches, or from one node to another node. This is called as means self loop. So in self loop it circulates in their own position. So it is a feedback loop consists of a single branch, that is A33 is a self loop. And next again a loop. What is the loop is there? So loop is having, suppose means the point start from here and it ends here. Okay, so this is your branch, means your one direction is there. So you can see that from input to output there is no, means अगर आपका इनपुट से स्टार्ट होता है और आउटपुट पे कहीं भी मीन्स किसी पॉइंट पे ये खत्म होता है और एक सर्कुलर फॉर्मेशन में आपको देखने को मिले। सपोज करिए कि आप यहाँ पे देखते हो कि x2 से आपका पॉइंट ये स्टार्ट हो रहा है, x3 पे ये एंड हो रहा है, और x3 पे एंड होने के बाद फिर वापस से ये आपको इस एरो के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो अगेन आप देखोगे इस एरो के डायरेक्शन में वापस से आप यहाँ पे x2 पे वापस पहुँच जा रहे हो। या दैट मीन्स जहाँ से आप स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, अगर वापस से वहीं पर आपको वो एंड हो जाता है तो ये आपको लूप कहलाता है। और ये जो गेन आपको ये जो पॉइंट A32 A23 जो होता है ये आपको गेन कहलाता है। सो गेन द ब्रांच दैट ट्रांसमिशन फ्रॉम फंक्शन ऑफ दैट ब्रांच। पाथ गेन मीन्स सपोज करो कि आपके पास x1 to x2 x3 x4, तो इसको अगर आप कंबाइन करते हो तो आपकी जो वैल्यू अगर आप कंबाइन करोगे कि तो x1 से x2 में आपको वैल्यू मिलता है A21। नेक्स्ट x2 से आप अगर x4 के पास अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको वैल्यू मिलता है A32 और A43 एंड देन अगेन A33। इन चारों वैल्यू को अगर आप कंबाइन आपस में कर दोगे तो ये आपको कहलाता है पाथ गेन। और अगर सपोज करो कि आपको पाथ गेन निकालना है बिटवीन x1 एंड x2, सो दैट इज योर A21 इज योर आंसर। और सपोज आपको पाथ गेन निकालना है फ्रॉम x1 टू x3, देन मल्टीप्लाई A21 एंड A32, दिस आर यूज योर पाथ गेन। देन अगेन सिमिलर टू पाथ गेन आपको एक लूप गेन देखने को मिलता है। तो लूप गेन क्या होता है कि अगर कोई लूप आपके पास है, सपोज करो कि आप यहाँ पे आपने जैसे मैंने आपको बताया था अभी x2 एंड x3 आर हैविंग अ लूप, here is a loop is there. So gain what we will do is multiply A32 and multiply A23. So if you multiply this you will get a loop, that is A32 and A23. If you multiply this you will get your loop gain. And one more thing is there, suppose a two loops path or loop can be a path that is said to be non-touching loop. Suppose one path is there and one loop is not touching. Suppose one path is there from here input, this point is going to this output. Sir, in this point two loops are there. First one is your A33, second loop is your A32 into A23. So this one is your loop 1, this one is your loop 2. तो अगर हम पॉइंट एक इस पाथ की मतलब बात करते हैं जहाँ पे आपका x1 से ये ओरिजिनेट हो रहा है, x2 पे पहुँच रहा है और x2 से वापस x4 के पास आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे आप देखोगे तो x2 पे ये आपको टच कर रहा है, लेकिन क्या आपका ये जो सेल्फ लूप A33 है ये आपको इस पॉइंट को टच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सो इन दिस वे दिस A33 इज कॉल्ड एज नॉन टचिंग लूप फॉर दिस पाथ x1 x2 एंड x4। तो हम लोगों ने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज देखी है उसको अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट ये देखोगे, ये क्लियर करना चाहोगे तो आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिले, दैट इज़ ये आपके नोड्स होते हैं। ये जो आपके ब्राइट कलर के पोर्शन जो होते हैं ये आपके पास देखने को मिलेगा, ये नोड्स कहलाते हैं। तो नोड्स आपके जो होते हैं जहाँ पे आपके पॉइंट्स चेंज होते हैं, अगर यहाँ पे देखो आप x1 यहाँ पे था वैल्यू, यहाँ पे ये नोड की वैल्यू x2 हो जा रही है, तो जहाँ पे आपकी वैल्यू जो चेंज कर जाए x2 x1 x2 x3 तो ये आपको नोड कहलाते हैं। नोड्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक आपका इनकमिंग नोड होता है, दैट इज आपका ये इनपुट नोड कहलाता है। एक आपका जो आउटगोइंग जहाँ पे आपके जो सारे ब्रांच को रिसीव करता है ये आपको कहलाता है आउटपुट नोड। तो इनपुट नोड को हम लोग सोर्स कहते हैं, यहाँ पे ये आपको आउटपुट नोड हो जाता है, आउटपुट नोड को हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं। सो इन दिस वे अगर आपका इनपुट से आउटपुट के प्योर पाथ है, सपोज योर इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड, ये आपका जो डायरेक्शन है दिस वन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पाथ। एंड व्हेन योर आउटपुट नोड टू इनपुट नोड अगर आपको ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड योर फीडबैक पाथ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। नेक्स्ट आपके पास देखने को मिलता है ट्रांसमिटेंस। ये जो वैल्यू है x1 से x2 के बीच में a b c d जो भी कांस्टेंट जो टर्म होते हैं, यहाँ पे a b आपके पास ये c देखोगे तो ये पाथ जो आपके पे कहलाते हैं ये आपको यहाँ पे ट्रांसमिटेंस के नाम से या फिर गेन के नाम से कहा जाता है।
नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखो तो ये लूप जो होता है, ये लूप आपके पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप C की आप बात करोगे, ये जो C वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है, तो B और C को अगर आप कंबाइन करते हो, ठीक है, ये B और C को अगर आप कंबाइन करते हो तो ये आपको लूप का फॉर्मेशन देगा। अगर आप सपोज करो इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो, इस डायरेक्शन से अगर आपने पोजीशन की वैल्यू स्टार्ट करते हो, इस पोजीशन x3 पोजीशन पे आप आते हो, x3 पोजीशन के बाद वापस से फिर घूम के फिर के इधर की ओर चले जाते हो, तो आप देखो जहाँ से आपने ओरिजिनेट किया था अपने पॉइंट, उसी पॉइंट पे अगर आप वापस पहुँच जाते हो, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ लूप। नेक्स्ट आपके पास एक सेल्फ लूप देखने को हम पिछले क्लास में पिछले वाले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर इसी पॉइंट पे कोई ऐसे करके एक पॉइंट बन जाता है, तो जहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट होता है ये इसी पॉइंट पे अगर फिनिश होता है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप। तो ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन दोनों में आपका डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये अगर हमको देखना है तो ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको ध्यान में होगा कि आपके पास इनपुट R ऑफ S आपको देखने को मिल रहा था, C ऑफ S आपका आउटपुट था और G ऑफ S आपके पास एक सिस्टम गेन के बारे में आपने देखा था। सिग्नल फ्लो ग्राफ में ये क्या हो जाता है, जो नोड्स होते हैं ये आपको पॉइंट कन्वर्ट हो जाते हैं नोड्स में, यानी कि R ऑफ S, C ऑफ S आपके पास दो नोड्स होंगे, वन इज इनपुट नोड, अनदर इज योर आउटपुट नोड, एंड दिस G ऑफ S इज योर पाथ गेन। ये आपके पास एक पाथ गेन के रूप में G ऑफ S आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट चेंजेस इज देयर दैट ब्लॉक इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ गेन और पाथ गेन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि आपके पास यहाँ पे एक फीडबैक लूप अगर आपको इस तरीके देखने को मिला था ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन में, तो ये आपके पास जो आप ये फीडबैक पाथ आप देख रहे हो, दिस फीडबैक पाथ इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लूप। ओके, so if you see that here, so R of S and E of S, B of S, G of S into HS is there. So R of S and E of S, so this value E of S is converted into the form of signal, and G of S is your this one is your transmittance, and then H of S, the signal symbol here is negative. So this negative is converted here in the form of minus of HS. If you multiply this minus signal with HS, you will get minus of HS. So the value is minus of HS. Next, in block diagram, suppose one node is there, one inserted node is there. So what we will do, from this R of S to G1 of S, and then one node is inserted here. So what we will do is the summing point जो है यहाँ पे ये nodes में convert हो जाएगा, summing point is converted into the nodes. So this point is there, it is node is there. So G1 of S, G2S are the two your admittance. One node is there, and from this node you will see that again a negative feedback loop. So minus of HS. So this one point form, this minus of HS is converted here. So in this way, the signal flow graph, means block diagram is converted into a signal flow graph. All the properties are same, but there is only difference is that in block diagrams we are having some blocks are there. These blocks are converted in the form of nodes are there, or in these systems are the means complicated. So these signals are again converted in the form of shapes or size. So we will see an example here. So in this example, one block diagram is shown here. So in this block diagram, we can easily see that here the symbol is plus, negative. So G1, G2 and G3, these are three means the blocks are there. These three blocks are again one feedback loop is there. H1 and H2 are these two feedback loops are there, and this one is your last is your unity feedback loop. So what we will do is start from the basic. So R is your input node. So from we will start with this RS. For this symbol value, we will indicate this as a 1, that is error signal is generated as a 1. So we will multiply with this 1. Again a symbol is there, 1 is there, so we will multiply with 1. Then G1 is there, G1 is your block. So this G1 is your again a block is there. From G1 to G2 and then again G3. So G1, G2, G3, you will like this you will write. But here you see that from C output, from C output, one point is there H2, and it is a negative direction, it is negative feedback loop. So from C of S, a point is there, that is your negative feedback part, that is your minus H2 is there. So minus H2 will be indicated here. In between G2 and G3, one node is there, that is H1, and that is plus in direction. So in between G2 and G3, one node is there, that is symbol of H1 is positive. So its value is also here positive value. Also you see that from C, a point is a unity feedback loop is there from up to output, means input. From output to input, one unity feedback is there, and the value is
negative feedback loop. So from C of S to R of S, okay, to R of S, one point is there, here it is shown as -1, that is your point is negative feedback loop. So to solve this signal flow graph, S.J. Mason, a scientist, S.J. Mason in 1953 has given a formula or called as Mason's gain formula to calculate this signal flow graph, or we can calculate a signal means a transfer function by using this signal flow graph. So S.J. Mason in 1953 gave a Mason's rule. In this, a block diagram reduction is required, means is converted to a signal flow graph, and from signal flow graph we will convert, or we will get the exact value of transfer function without any further delay, or without any removal of any blocks. So the transfer function t is represented by a signal form. ये जो t आपका है ये transfer function है. So t is equal to C of S by R of S. As we discussed already, the transfer function is defined as the ratio of Laplace of transfer output by the ratio of Laplace transform of input. So the t transfer function is equal to C of S by R of S, and it is given as a formula sigma I equal to 1 to n pi delta I divided by delta. Here n is your number of forward path. Here you can see that n is there, so the n number is your number of forward path. Pi, the ith forward path. So I equal to 1, that is your pi. Here p means pi is your ith number of forward path. Suppose you are having n numbers, means p1, p2, p3, p4, all these are your forward path. So your p1 is your forward path first, p2 is your second forward path, p3 is your third forward path. So like that, I number is your forward path. Delta is the determinant of the system. This delta is the determinant of the system, final determinant, and this delta I is a determinant of this, means overall the function is there. So if you the value of delta I or delta, we can find out with this formula. Delta is equal to 1 minus sum of indivisible loop. Okay, so 1 minus sum of indivisible loop, then sign is converted, here minus sign is there, again after that if you use a minus is converted into the positive signal. So minus, after that minus to positive, sum of the product of loop transmitters of all possible of non-touching loop, that is आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे प्लस सम ऑफ, यहाँ पे आपने इंडिविजुअल लूप को लिखा था, यहाँ आपको सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स करना है, like this. Next, minus plus, again formula will be changed, and the function is here a minus, and your function is again converted into sum of 3 non-touching loops like this. So sum of individual loop, then sum of 2 non-touching loops, then last sum of 3 non-touching loops. In this way the formula will be generated, and then calculate the I, means delta I. So 1 minus loop of that do not touch the ith forward part, like this you have to calculate. For the path gain we have to calculate and find out. So these are the systematic approach or the steps we have to do, or we have to perform for this calculation of this signal flow graph. The first one is calculate the forward path gain, that is calculate every p. जितने भी फॉरवर्ड पाथ होंगे हम लोगों को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट कैलकुलेट ऑल लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे हम लोगों को लूप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. स्टेप 2 जो होता है उसमें हम लोग लूप्स फाइंड आउट करते हैं, कितने सारे लूप्स हमारे सिस्टम में है. नेक्स्ट हम लोग नॉन टचिंग लूप्स निकालते हैं, जिसमें कि 2 ऐसे लूप्स का प्रोडक्ट को निकालते हैं जो कि आपस में नॉन टचिंग है. नेक्स्ट हम लोग फिर 3 का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं. ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके जितने भी सम लूप्स हैं वो आपको मिल नहीं जाते हैं. लास्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा निकालते हैं, डैट इज आपका डिटरमिनेंट निकालते हैं. तो डेल्टा फ्रॉम दिस स्टेप 2, 3 एंड 4 एंड 5 ये हम लोग कॉम्बिनेशन में निकालते हैं. और लास्ट जो आपका पार्ट होता है वो हम लोग डेल्टा आई निकालते हैं, यानी कि आपका जो भी आपका मतलब कि प्रोडक्ट होता है पी आई जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डेल्टा आई को कैलकुलेट करते हैं. एक एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल पे आपको और क्लियर हो जाएगा. सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट वन ब्लॉक डायग्राम इज देयर. सो पहले इस ब्लॉक डायग्राम को हमको कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में. सो
here the symbol is positive and negative, so what we will do is R is having R of S is converted to the first, that is your यहाँ पे हमको वैल्यू देना पड़ेगा, सिंबल एक 1 देना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे एरर सिग्नल है। नेक्स्ट अगेन आपके पास एरर सिग्नल, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू हम 1 को प्रोवाइड करेंगे, ये भी वैल्यू आपको 1 से इसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि इस एरर सिग्नल और दूसरे एरर सिग्नल के बीच में जो वैल्यू है वो आपके पास G1 है, तो यहाँ पे जो आपका एरर सिग्नल है दूसरा एरर सिग्नल के बीच में आप यहाँ पे वैल्यू दे दोगे, इसकी वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पे G1 और G2 के बीच में अगेन एक नोड है, तो G1 और G2 के बीच में आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा। इस पॉइंट नोड को हम यहाँ G2 से G3 के लिए इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब देखोगे आप कि यहाँ पे G3 के बाद आपको एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो रहा है या फीडबैक पाथ आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ योर H2, और H2 जो है आपको वो निगेटिव फीडबैक है। तो निगेटिव फीडबैक कहाँ पे आ रहा है आपका, G2 के पहले आपको एंड हो रहा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे G3 के बाद से स्टार्ट करके आपको कहाँ एंड करना है, G2 के पहले एंड करना है, एंड दिस वैल्यू इज योर माइनस ऑफ H2। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो G2 से आपको ये वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और आपको G1 के पहले जाके एंड हो रहा है, और ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। सो फ्रॉम G2 टू G1 मीन्स बिफोर G1, सो वी विल सी फ्रॉम G2 इट स्टार्टेड, before G1 it's ended, and its value is positive of H1। here no negative sign is there because आपको यहाँ जो समिंग पॉइंट है इसमें साइन आपका पॉजिटिव दे रखा है। लास्ट ये जो आपका आउटपुट एंड है, इस आउटपुट एंड से आपको एक यूनिटी फीडबैक लूप माइनस H2 इज देयर, सो माइनस H2 का आपका एक आपको लूप जो है ये आपको यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, तो आपको CFS से एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आपका ये पे एंड होगा, और H1 यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है आपके पास, सॉरी H2 आपके पास डायरेक्शन गिवन है, हियर इट शुड बी H3, सॉरी H2 इज देयर, H3 इज देयर, सो यहाँ पे आपके पास ये माइनस ऑफ H3 के रूप में, या फिर आपको ये समिंग पॉइंट यहाँ से एलिमिनेट करना, सॉरी ये आपके पास जो ये पॉइंट दिया है ये आपके पास एक यूनिटी फीडबैक लूप आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपके पास ये यूनिटी फीडबैक लूप आपको -1 के फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इन दिस सिस्टम व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टेप 1 वी हैव टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड पाथ गेन। आपको जितने भी फॉरवर्ड पाथ गेन है वो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आपको पिछले स्लाइड्स में आप देखोगे तो यहाँ से आपको इनपुट से आउटपुट के बीच में कितने सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट से आउटपुट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो पहला आपको एक सीधा कॉमन रास्ता दिखेगा कि आप यहाँ इस डायरेक्शन में 1 अगेन 1 G1 G2 G3 और ये 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से आप इनपुट से आउटपुट में जा सकते हो, पहला आपको रास्ता मिलेगा। आप अगर देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ जो वैल्यू आपके पास ये है, ये -H2 जो है ये आपके पास अगेन रिवर्स ऑर्डर है, तो आप इस डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आपके पास केवल एक ही रास्ता यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से G1 से H2 की ओर जाने की, मतलब G1 इनपुट से आउटपुट की ओर जाने का रास्ता सिर्फ आपको एक देखने को मिल रहा है। तो आपके पास फॉरवर्ड पाथ गेन यहाँ पे P1 = G1 G2 G3 आपने लिख दिया। अगर इसमें तरीके से आप देखो तो अगर आपके पास 2-3 और अगर आपके पाथ होते जहाँ से हम इनपुट से आउटपुट की ओर जा सकते थे तो उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास लूप्स आपको काउंट करने हैं। तो लूप्स काउंट करने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने सारे लूप्स आपके बन रहे हैं, यानी कि इनपुट से आउटपुट वापस इनपुट में कितने सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला लूप अगर आपको देखोगे तो ये आपको एक लूप आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका डायरेक्शन अगर आप देखो तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और वापस में आपका ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये आपको एक लूप दिखा रहा है, तो ये आपका लूप 1 हो जाएगा। लूप 2 अगर आप देखोगे तो G2 G3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वापस से आपको ये H2 पे लाके G2 के थ्रू वापस आ रहा है। इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये आपको इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको एक डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये आपको एक लूप नंबर यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखो कि आप G1 G2 G3 और फिर ये वापस से आप यहाँ पे नेगेटिव यहाँ इस डायरेक्शन में आप आ जा रहे हो, तो ये आपको लूप 3 को आपको डिनोट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ से 1 2 एंड 3 को यहाँ पे डिनोट होता है। तो ये आपके 3 लूप्स हो जाएंगे। 3 आपके लूप्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके जो फंक्शन की वैल्यू जो थी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे से नोट डाउन कर दिया है। तो एक बार फिर से आप देख लो कि L1 = G1 H2 एंड G1 G2 एंड H1। सो G1 G2 एंड H1 ये आपको लूप 1 आपको डिनोट कर रहा है। तो इन तीनों की वैल्यू को आप लिख दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा G1 G2 और H1 की। तो G1 G2 एंड H1 यूज L1। L2 की वैल्यू अगर आप देखो तो -G2 G3 एंड H2 आपको देखने को मिल रहा है। तो L2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है G2 G3 और -H2,
इन तीनों को वैल्यू आप लिख दोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे L2 इज इक्वल टू माइनस G2 G3 इंटू H1। L3 की वैल्यू अगर आप देखो तो माइनस G1 इंटू G2 इंटू G3। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे G1 G2 G3 और ये -1 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई अगर हो जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ G1 G2 एंड G3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लूप्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो आपको यहाँ से पहला स्टेप हो गया, फॉरवर्ड पाथ निकाल लिया हमने। सेकंड स्टेप में हमने जितने भी लूप्स थे उसको फाइंड आउट कर लिया। तो स्टेप 1 और स्टेप आपका मीन्स आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको फंक्शन का डिटरमिनेंट निकालते हैं, डेट इज आपका जो डेल्टा की वैल्यू है वो निकालते हैं। तो डेल्टा के लिए वैल्यू के लिए आपके पास यहाँ पे क्या करना है, एक और चीज़ हमको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपके पास ये L1 L2 L3 है, यहाँ पे सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि आपके पास जैसे इंडिविजुअल लूप था तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि ऐसा कितने लूप हैं जो कि आपको 2 के कपल में है। तो आप अगर L1 और L2 को देखोगे तो ये आपका 1 नंबर लूप था, ये 2 नंबर लूप है और ये 3 नंबर लूप है। ये इनमें से आपके कितने सारे नॉन टचिंग लूप्स हैं इसको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप देखो कि आपको ये जो पाथ है इस पाथ पे 2 आपका टच कर रहा है तो आपको ये नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकता है। इसी पाथ में आपका जो थर्ड लूप है वो भी आके आपको टच कर रहा है तो आपको 1 2 3 में आपको कोई भी आपको नॉन टचिंग लूप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमको नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पे देखने को मिलता तो हम यहाँ पे इसको L1 L2 के तरीके से L2 L3 के तरीके से इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते और इसको लिख के मतलब कि रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो डिटरमिनेंट की निकालेंगे तो 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 सम ऑफ इंडिविजुअल लूप यहाँ पे डिनोट करेंगे। अगर मेरे पास इन केस सपोज करो कि आपके पास 2 नॉन टचिंग लूप्स होता तो यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे साइन आपका प्लस होता और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। तो आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि आपके इसमें कोई भी आपके पास कोई नॉन टचिंग लूप है तो आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू जो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी इसमें कोई लूप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो ओवर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन यानी ओवरऑल अगर ट्रांसफर फंक्शन आप निकालते हो C ऑफ S बाय R ऑफ S तो आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि C ऑफ S बाय R ऑफ S इज इक्वल टू जो फॉर्मूला मेरे पास दिया हुआ था ये था आपका समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 इंटू N पी आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो इस रेशियो में अगर आप देखो तो I इक्वल टू 1 टू N कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है, दैट इज I इक्वल टू 1 आपके पास है। तो इस तरीके से आप देखो तो आपका फंक्शन जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा P1 इंटू डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। P1 की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है। ये देखो ये आपके पास P1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप P1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू हम लोगों ने 1 कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट डेल्टा की वैल्यू, यहाँ पे आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तीनों वैल्यू को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको हम जो ट्रांसफर फंक्शन है C ऑफ S बाय R ऑफ S वो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होकर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम अगेन सेम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक फिगर आपके पास गिवन है। इस फिगर में अगर आप देखो तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्टेप आपके पास है कि कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फॉरवर्ड पाथ का मतलब यही होता है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का एक सीधा रास्ता। इनपुट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक पहला फॉरवर्ड पाथ आपको देखने को मिलेगा 1 इंटू G1 G4 इंटू G2 और ये तो ये आपके पास G1 G4 इंटू G2 ये आपको पहला फॉरवर्ड पाथ आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने के लिए G1 G4 को से पार करते हुए G3 के थ्रू इस तरीके से भी हम जा सकते हैं, यानी कि ये इस तरीके से भी हम यहाँ से ओवरलैप करके क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास G1 G4 इंटू G3। तो ये आपके 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। इसके बाद अगर फीडबैक पाथ हम कैलकुलेट करते हैं तो फीडबैक पाथ में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि जिस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो उस पोजीशन के बाद आप जहाँ पे वो एंड करते हो तो वो आपको कहलाता है आपका लूप सिस्टम।
तो यहाँ पे देखो पहला लूप आपको देखने को मिलेगा कि इस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो, वापस से आप इस पोजीशन पे आके एंड कर रहे हो, दैट इज G1 G4 इंटू H1, ये आपको लूप 1 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका लूप 1 जो है वो आपको G1 G4 इंटू H1 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये देखो G3 से अगर आप जा रहे हो तो वापस आप G2 की तरफ नहीं मुड़ रहे हो, तो दैट मीन्स ये लूप आपका नहीं है। तो ये आपके पास पहला लूप है। दूसरा लूप अगर आप ध्यान से देखोगे तो G1 G2 G4 और ये माइनस ऑफ H2, यानी कि आप इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो और वापस से इस पोजीशन में आ रहे हो, यानी कि ये पोजीशन आपको दे रहा है L2 की वैल्यू, यानी लूप 2 की वैल्यू। तो लूप 1 और लूप 2 इस तरीके से हमको ये दूसरा लूप भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। और तीसरा लूप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन में अगर आप देखो तो आप ये G1 G3 G4 H2, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे आप गए और फिर वापस से आप यहाँ पे एंड कर रहे हो, यानी कि एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे आप फॉलो किए और वापस से आप यहाँ से इस पोजीशन पे आप एंड कर रहे हो। तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको अगर आप चेंज करके इस पोजीशन से अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी वन से यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप वापस से जो है इसी पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो आपके पास जो पहला लूप आप देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है, दूसरा लूप आपको देखने को मिलेगा तो G1 G4 G2 इंटू माइनस ऑफ H2, और थर्ड लूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और इस तरीके से आप यहाँ पे एंड कर रहे हो। तो ये आपको थर्ड लूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू और L3 की वैल्यू हो गई। और उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं। तो नॉन टचिंग लूप्स देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला लूप और दूसरा लूप इस पोजीशन पे टच कर जा रहा है। थर्ड लूप जो है आपको वो भी आपको जो है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे टच कर रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा नॉन टचिंग लूप नहीं देखने को मिल रहा है, दैट इज आपका नॉन टचिंग लूप्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देन हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। अगेन यहाँ पे आप अगर कोई ऐसा रहता कि 2 नॉन टचिंग लूप्स होता तो यहाँ पे प्लस करते और इसकी वैल्यू यहाँ पे शो करते। तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप की वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ पे, और इस वैल्यू को L1 L2 और L3 के आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन आपका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास वैल्यू निकालनी है डेल्टा 1 की और डेल्टा 2 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपके पास पोजीशन 2 थे, फॉरवर्ड पाथ जो थे वो 2 थे, तो आपके पास P1 और P2 के कारण आपके पास यहाँ पे आपके पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी आपको देखने को मिलेगा। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, दैट इज आपको कितने सारे लूप्स हैं जो कि आपको फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो ऐसा आप देखोगे ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेम केस में आपको फॉरवर्ड पाथ 2 के लिए करना पड़ेगा कि सेकेंड फॉरवर्ड पाथ से कितने सारे लूप्स जो हैं वो आपको आपस में टच नहीं कर रहे हैं। अगेन 1 माइनस 0 आपकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा, यानी कि अगर इसको फिर से अगर हम कंसिडर करते हैं तो पहला फॉरवर्ड पाथ जो आपके पास था, ये वैल्यू जो आपके पास है इसमें कितने सारे लूप्स हैं जो इस पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं। पहला अगर फॉरवर्ड पाथ आपको याद हो तो वो था G1 G4 G2 इंटू 1। इसमें कितने लूप्स हैं जो इस पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो कि लूप नंबर 1 यहाँ पे टच कर रहा है, लूप नंबर 2 आपको इस पॉइंट पे टच कर रहा है और लूप नंबर 3 आपको इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो देयर इज नो नॉन टचिंग लूप्स इन दिस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई इस केस में। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आप मूव करते हो और सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए वैल्यू निकालते हो तो सेकंड पाथ जो आपका था वो कुछ इस तरीके से था। इस पाथ में अगर आप देखोगे तो कितने सारे लूप्स आपको इस पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट लूप टच कर रहा है, सेकेंड लूप टच कर रहा है, थर्ड लूप भी आपको टच कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास इसकी भी वैल्यू आपके पास 1 माइनस 0 इक्वल टू आपके पास 1 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। नाउ ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू थी आपके पास C/R की जो रेशियो थी ये आपके पास देखने को मिलता है P1 इंटू डेल्टा 1। फॉर्मूला अगर आपको फिर से रिकॉल कर लेते हैं तो फॉर्मूला आपके पास जो था ये था समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 इंटू n अप टू n, एंड यहाँ पे आपके पास PI इंटू डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा, ये मेरे पास फॉर्मूला था। यहाँ पे n की जो वैल्यू थी नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 थी, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास P1 इंटू डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा प्लस P2
इंटू डेल्टा टू डिवाइड बाय डेल्टा। अगर आप डेल्टा डेल्टा कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो और P1 प्लस डेल्टा 1 से आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे पास जो वैल्यू आपके पास आ रहा है वो आ रहा है C बाय R इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस P2 इंटू डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा। आप वैल्यू पुट करो, P1 की वैल्यू पुट किया तो हमने, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई मेरे को G1 G2 इंटू G4, P1 की वैल्यू हो गई, डेल्टा 1 की वैल्यू 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा 2 की वैल्यू 1 है तो और P2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को ये P1 इंटू डेल्टा 1 अब P2 इंटू डेल्टा 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट डेल्टा की वैल्यू मुझे लिखनी थी, तो डेल्टा की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, ये रहा डेल्टा की वैल्यू। इस डेल्टा की वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया था इसी डेल्टा की वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इन दोनों वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो G4 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। आफ्टर कॉमन्स मेकिंग अ कॉमन G1 G4, यहाँ पे भी G1 G4 है, यहाँ पे भी G1 G4 है, तो इनको कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मीन्स कैलकुलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज वन इज नथिंग बट योर C ऑफ S बाय R ऑफ S। तो आप इस तरीके से देखोगे तो एक आपको यहाँ पे डायग्नोस फॉर्मेटिक फॉर्म में आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अनलाइक पिछले जो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि वहाँ ब्लॉक डायग्राम में हमको रिडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए ब्लॉक्स को हमको सॉल्व करना पड़ता है और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट आवर ट्रांसफर फंक्शन। दैट्स ऑल। Thank you.